Right, welcome back. Welcome back. You watching me on Inside Story on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj, and we were, of course, talking about the biggest scam ever to hit any stock exchange, the NSEL scam. Today, right now, of course, we're going to talk about the BHEL scam, the BHEL Bhutan scam, जिसके ऊपर भूटान में एक इंक्वायरी लगा दी गई है. उसके बारे में हम बात करेंगे. प्रोफेसर अय्यर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, and of course, activist Pradeep Nambiar remains in the studio with us. We'll of course talk about that. But first, let's take a look at the headlines again. Headline देखने के बाद हम ये कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने यूएस में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में और सिडनी में ऑल्फोंस एरीना में जिस प्रकार भारतीय मूल के जितने लोग हैं उनको मंत्रमुग्ध करके पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा कि अब भारत में आप निवेश कर सकते हैं, अब भारत जाग उठा है. नाउ इंडिया इज गोइंग टू बिकम द जायंट दैट इट वाज प्रोफेसाइड टू बिकम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. व्हाट इज द कांग्रेस's व्यू ऑन दैट? वील टॉक अबाउट दैट आफ्टर वी टेक अ लुक एट द हेडलाइंस. भारतीय रेलवे में 100% होगा विदेशी पूंजी निवेश. ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान. सलमान खुर्शीद ने उठाया मोदी की रैली में भीड़ पर सवाल. कहा विदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में जुटी भीड़ कितनी असली. बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि. फर्जी मुठभेड़ों में गुजरात सरकार का हाथ नहीं. एचएस बेदी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का खुलासा. और राजनीति में रजनीकांत की दिलचस्पी. सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि भगवान ने चाहा तो वो राजनीति में आकर लोगों की करेंगे सेवा. Mr. Salman Khurshid says, we don't know about the crowd in Sydney. What? I mean, that's something which is really beyond me. Maybe I'll get Professor Iyer in on that. Professor Iyer, what do you think? All these guys were sent in from where? From Haryana and Maharashtra and everywhere else, in chartered planes, just like we charter buses and we charter trucks to send in people onto a rally. Professor Iyer? It's the biggest joke. Actually, Congress is not able to fathom the fact that this Modi wave is continued beyond India and it has actually gripped the world. I tell you what, it's not just the Modi wave. This is my personal opinion. What Modi is doing is, what Narendra Modi is doing is, very cleverly, he is using the instruments available to him, the technology available to him in the 21st century, and he is trying to sell India in a 21st century manner. That's what he's doing. And this is a new style of functioning for any prime minister anywhere. And all the parties which are still seeped in the old traditions are somehow not able to come to grips with that. Pradeep, what do you think? So you got a product. Actually, what has happened? You got a product, and if they market it well, what is the harm in that? The point is, Modi is not only doing his job, but people can see him doing his job. He's getting investments. He's announcing schemes like Make in India. Never in the past 4 to 5 years did India. देश में कभी इस प्रकार के क्रांति लोगों ने नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर इतना एग्रेसिव तरीके से देश को मार्केट कर रहा है. देश में पूरे देश और विदेश से यहाँ पर बिजनेस लाने की बात कर रहा है. मेक इन इंडिया 2009 से आप देखोगे जिस प्रकार जीडीपी ग्रोथ हैज फॉलन डाउन 50%. पूरे स्टैंड स्टिल में आ गए थे इंडस्ट्री, चाहे वो रियल एस्टेट को, एयरलाइंस हो, हर चीज के absolutely on the bottom. So which means 4.7 तक so which means you needed a feel good factor. That's exactly what he's doing. Not only that, he's showing. वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो करके दिखा रहा है, लोगों को कह रहा है, and they're promising investment. Now immediately when you, एक चीज है कि बोलना, you can't market a bad product. People are marketing. If BJP is marketing Modi, they are marketing a good product and it is hitting the small people. You won't believe आज जिन लोगों से मैं बात कर रहा, छोटा से छोटा बच्चा भी जब उठता है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम जानता है. This is right, I tell you what. This is not. Hang on, guys. This is not an exaggeration. We've got Professor Iyer and we've got Pradeep Nambiar also with us. Another woman on the line with us, our very old friend Gopal Shetty. Gopal Shetty साहब नमस्कार. जी नमस्कार. नमस्कार. आज जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने सिडनी के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया अपने भाषण से, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी बताएं.
देखिए, मैं आपको एक बात बहुत आपके मन की और जनता के मन की बात बताना चाहूंगा। जी बताएं। भगवान जो होते हैं ना, भगवान सबको मंत्र मुक्त करते हैं। भगवान के ऊपर हमारे अटूट आस्था और विश्वास और श्रद्धा है। जी इसके लिए भगवान के ऊपर जिस प्रकार से हम मंत्र मुक्त होते हैं, वैसे भगवान का दूसरा रूप नरेंद्र मोदी जी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो देश के जो हमारे विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग भी कहते हैं। जी तो साहब, मोदी साहब जो भी करते हैं वो लोगों के लिए करते हैं, लोगों के लिए कहते हैं। इसलिए मोदी साहब का नाम आने के बाद में लोगों ने मंत्र मुग्ध होना ये स्वाभाविक है। जी, लेकिन ये सबसे तो पहली बहुत- बार है गोपाल शेट्टी साहब, ये सबसे पहली बार है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार देश के बारे में, देश की जो चीजें हैं और यानी भारत देश क्या है उसको पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। उसके बारे में मैं चाहूंगा जरा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कहीं सभा में हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। जी बताएं। देखिए, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने देश के चित्रों को लोगों के सामने खुलकर रखने का प्रयास किया जी और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। जी और लोगों को एक विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करने की क्षमता उनमें है। जी इसलिए मोदी साहब जो भी कहेंगे उसके साथ में लौट देगा। स्वच्छता अभियान में मैं आपको बताता हूँ बजाज जी, जी मैं तो 24 साल प्रतिनिधि हूँ। हम जैसे लोग कलेक्टर को अगर फोन पे 3 बार सुनते तो मिलते थे। जी आज ये ग्राम स्वच्छ योजना के लिए कलेक्टर साहब हमको 3 बार दिन में फोन हैं। क्या बात है जनाब, तो ये क्या बात। इतना बड़ा बदलाव आ गया, जी इतना बड़ा बदलाव आ गया। वंडरफुल, तो वंडरफुल टू हियर दैट। सारे अधिकारी काम में लगे हैं, सारे लोग काम में लगे हैं। वन साइड ट्रैफिक है साहब, वन साइड ट्रैफिक। गोपाल शेट्टी साहब, आखिरी सवाल ये है कि आज सलमान खुर्शीद, पूर्व मंत्री, यूपीए सरकार के पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद साहब ने आज सवाल उठाए हैं भीड़ के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि वो जो भीड़ थी वहां पे वो कहां से आई, उसके ऊपर जरा सवाल है। जी बताएं। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब और उनके पार्टी ने जितने भी भीड़ अपने देश में कांग्रेस के पार्टी में किया, जी वो इस प्रकार से ही बस में पैसे लोगों को देकर लाते थे। तो उनके विचारधारा में वो है। जी इसलिए आज मोदी साहब जो भी करते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई ये इस प्रकार का, क्योंकि उनका एजेंडा ही वो है, उनकी सोच वही है, उनके विचार वही है। जी अब ये तो साहब लोग देश भर के, दुनिया भर के लोग उनको उनके दिमाग के, उनकी सोच की, उनकी कल्पना की किस प्रकार की बातें करते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में लोगों को कहते हैं कि तो इन्होंने पैसे देकर भाड़े से लेके आया। अब ये तो उनका दिवाला किस प्रकार से निकला है, ये लोग कहते हैं। राइट। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार का कमेंट करते रहे ताकि उनका दिवालियापन का हमको प्रचार नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो रहा है। राइट। मिस्टर गोपाल शेट्टी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। राइट, प्रोफेसर अय्यर, गोपाल शेट्टी साहब ने कहा कि जहां तक नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो आपको चिट्ठी लिखी है, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने जो आपको चिट्ठी लिखी है राव साहब के मतलब यानी BHEL के मतलब, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पर भी नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने जो कुछ कहा है वो करके दिखाएंगे। प्रोफेसर अय्यर। नहीं, मेरा देखिए ये कहना है कि वो 100% करेंगे। कई जगहों में देखिए क्या है कि सरकारी सिचुएशन में जो है वहाँ जो जिस तरह से अटकल चीज़ें हो जाती हैं कई बारी, एंड ब्यूरोक्रेट्स, अभी भी एंटायर ब्यूरोक्रेसी कोई चेंज तो नहीं हुई है, वही ब्यूरोक्रेसी जिसको यूज किया जा रहा है। जी। तो आई थिंक इट इज मेनली ब्यूरोक्रेसी विल बिकम द कल्प्रिट इफ इट डजंट एक्ट। राइट। We cannot blame the Prime Minister alone, but for sure, I would say the Modi means business. He is intense. His intent is right, and if content is right after the intent and content, if they come together in Narendra Modi's case, I tell you then this. No, but as far as the BHEL scam is concerned, where do you see it going? Now, because the only thing that the Prime Minister's office has told you that is going to investigate is the appointment of Mr. Rao. Yeah, that's it. But the BHEL scam, I wrote 4 letters. Right. And there totally 4 letters are there which have been written to the Prime Minister himself. Right. And as far as my sources go, that they're very keen to take immediate action. But what is stopping them, I cannot explain. I can only see politics in this because the minister who is in control is Anand Gite. I have written 2 first letters to Anand Gite, and therefore I wrote to Prime Minister saying there was no action from his end, and for whatever reasons, because it was Praful Patel's gift to the country that he got all these scams. The same way he destroyed Air India, he has destroyed BHEL along with BP Rao. Now it is for Modi's government and his minister, Mr. Anand Gite of the Shiv Sena, to act. So now I am very hopeful that some action will be taken,
and Rao will be asked to go, and investigation will be opened against him. Because in Bhutan, I'll tell you, the anti-corruption department of Bhutan, the royal government of Bhutan, is going to investigate everybody in Bhutan. So if a small country with just 7 lakh population can do this, a big country of 1.2 billion needs to answer. And that answer has to come from the PMO in this case of the Bhutan scam, where it is Bhutan Venture Technologies. No, but over here, I don't think Mr. Anand Gite can do very much over here, because at the end of the day, since this concern and appointment which took place before Mr. Anand Gite came, was inducted into the ministry. But it is his department. Yeah, it is his department. I agree with you. He is the Minister of Heavy Industries. Yes. So he cannot say that I'm not responsible. Yeah, but he's not. But I'll tell you what. Since the appointment was made earlier, I think it is up to the PMO to direct Mr. Anand Gite to act. I agree with That's you. it. And that is what I have written in my letter, to kindly direct the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise to act. Right. But I have not seen any action on the ground. Now right here, let me ask you this, and Pradeep, I would like you to come in on this, and I would like our viewers to send in your responses on this as well. ये क्या है, ये माजरा क्या है कि हम लोग अपने ही इंस्टीट्यूशंस, हमारे ही बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस विद पब्लिक मनी, आवर मनी, योर मनी, माई मनी, द मनी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमारे रिसोर्सेज उनको डिस्ट्रॉय करने में हम क्यों लगे हुए हैं? लुक एट BHEL फॉर एग्जांपल, लुक एट मारुति उद्योग फॉर एग्जांपल. ये सरकार का था मारुति उद्योग, उठा करके आपने सुजुकी को दे दिया. जहां तक कि एयर इंडिया का प्रश्न है, अब एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, ये हो रहा है कि एयर इंडिया को भी भेज दिया जाएगा. अब ITDC के जो होटल्स हैं वो आपने भेज दिए. इसके अलावा ना जाने कितनी, और जो नाल्को का केस है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का केस है, वो भी बेचा, वो NDA सरकार ने बेचा. जो ITDC के जैसे सेंटोर होटल्स थे वो भी बिक गए. मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे प्रोफेसर अय्यर कि आखिरकार हिंदुस्तान के जो रिसोर्सेस हैं उनको इस तरीके से हम क्यों ट्रीट कर रहे हैं, वो आप बताएं. See, number one principle, सबसे पहले तो government should not be in the business of certain businesses. For example, running hotels is not the job of the government. आज आप होटल इंडस्ट्री में देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर जिस तरह के क्वालिटेटिव फीड दे रही है, उसमें किसी भी पब्लिक सेक्टर होटल. I'm not talking about one specific thing. Let's look at ONGC for example. Let's look at the oil sector. ONGC, the government is not divesting. The ONGC is not being divested in. BHEL cannot be You are divested not in. divesting, but what you are doing is you are handing it over to various parties. You are destroying the institutions from within. See, I'm very clear. Institutional destruction has happened definitely in the last decade. And we know which regime was there. The lesser said, the better. UPA has destroyed the very fabric of institution in this country. And I hope that BJP steers clear in its current avatar from all this business. Pradeep, आप बताएं. Sir, I mean, see, what the Prime Minister has said, that minimum government and maximum governance. Definitely, the government doesn't need to be in many places, but definitely it can't over the main core issues like infrastructure, kisi private party. These are the things that government has to do. But government is always the highest spend, the biggest spender. In the last 5 years, we saw that the government was not spending at all, and that brought the entire economy to the halt. And where this BHEL issue is concerned, with transparency is the only thing. Every posting, every detail, everything in the bureaucracy, if it is monitored, हर चीज transparent होगा, तो ऐसे issues बार-बार नहीं उठेंगे कि arbitrary authority of the minister in power. इस चीज को खत्म हो गया. And slowly we are finding that these things are coming to an end. Arbitrary power of minister to depute, to transfer. We find that incorporated in Maharashtra, where the CM has said only the head of departments and not the ministers are going to transfer people under his department. The changes are coming, but will action be taken against the corruption that has occurred before? That is a challenge before the Modi government, because that is what he promised before the elections, कि हम इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेंगे and we'll act. Now we have not seen even one single action where the government has acted on the corrupt. Whether it's Praful Patel, whether it's Sharad Pawar, whether it's civil aviation, whether it's Ajit Dada Pawar, or Ajit Dada Pawar. Ajit Dada Pawar, the corporate scams, the bank scams, जितने बड़े-बड़े scams है, we don't find, और हर व्यक्ति, every investor, छोटे से बड़ा, हर जनता है कि इसमें कौन involved है, कौन किसके गोद में बैठा है, nothing seems to be happening. I have a very simple point. See, in this case, in the BHEL, the appointment scam was the first scam. Right. And the chairman was used to foster other scams. So Bhutan Venture Technology scam was discovered by Inertia in April, and we investigated and went forward and got the paper
which actually proved that a commission agent was appointed called Bhutan Ventures Technology. But let us go back to appointment. Now, in the appointment case, the Public Enterprise Selection Board is the body which appoints people. Yes. Yesterday in the Yes. channel we have explained that there was a chairman selected called Prakash Chand. He is today the executive director and officer on special duty at Hardwar, the best plant that is operating. Rest of the BHEL factories are in doldrums. Now also the time is not lost. Even if that paper is gone, the Prime Minister, new Prime Minister and the new Minister must come together and they must reinstate. No, but the fact remains, Professor Iyer. Reinstate Prakash Chand. No, hang on a minute. That is the only solution. The fact remains that even after superannuation, how can a man be given extension for 2 years? This That is the most important point. I tell you, Now- we have got this 1999 dictum of N. Vittal. Yes. And N. Vittal G has clearly said there is no scope. Yes. In the CVC says there is no scope. But And in the case of Mr. BP Rao, a specific exception was made wherein it was said that it is only Mr. BP Rao and Mr. BP Rao who can carry BHEL forward for the next 2 years. That is what what a was fallacy said. of an argument. Right. In 2012-13, BHEL made a profit of 6,800 crores roughly. Yes. In the next year, 2013, these are Rao's time, 2013-14, BHEL profit came down to 3,000 crores. Right. And now in the first quarter, BHEL reported a loss of 305 crores. For the And first time. For the first time in the ever. history. Yes. For the first time in the history. And I hear from inside sources, the loss will mount to 2,000 to 3,000 crores. And we are going to have a $1 billion loss on the corpus of BHEL right now. कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बार इतिहास में BHEL के इतिहास में पहली बार पहले क्वार्टर में 304 करोड़ का नुकसान हुआ है। उस फर्म में जो आपकी नवरत्न कंपनियों में से एक है, सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट अर्निंग कंपनी was BHEL. I must tell you one more thing. Yes. Which is exclusive to your viewers. There is a recent tender. In that tender, the L1, L2, L3 in India, the lowest gets the order. Right. BHEL quoted for this. This was an NTPC tender where no Chinese can enter because NTPC specifications are excellent. Now in this tender, the lowest party that bidded is Toshiba JSW, the joint Yes. venture between Toshiba and Jindal Steel Jindal Southwest. Yes, the Jindal Sachin Southwest, Jindal that's Group. right. Now their quotation or their order, their tender is 450 crores below the BHEL. Can you believe me? Right. And the L2 is Larsen & Toubro with 180 crores above the tender of Toshiba. And remember, the world's best turbines for power plant application in the thermal today is Toshiba. Right. If the best machines are available at the cheapest price, tell me what Rao has done for BHEL. Has made it so uncompetitive. Right. And So I what are have you further saying? news. Are you saying? Wait, now, listen. Are you saying that the figures that you are quoting now again? We do not watch for the veracity of these figures, but if by and large these figures, No, you I know, are stand 10 by my figure all right. because it is there right now. All right. So what are you saying? Was the information leaked earlier that the BHEL tender would contain exactly this figure? Therefore, Toshiba JSW must bid that much lower. Is that what you're saying? I will tell you, let us understand, the yen is falling very badly. I am dealing Right. in this business for a long time. Right. So Yen is weakening, please so go the ahead. Japanese will become competitive when they manufacture in India. Right. So Make in India concept of Modi is perfectly right, because if you invite these investments, especially not US, it's not dollar based, but the Germans, the Japanese, they're the best technology. They come here, they'll make it cheaper. Remember this, because they are wanting to compete with China. Chinese are actually stealing intellectual property in their country. So no European, no Japanese will go there. will want them to do that. That's right. But BHEL is becoming inefficient under Rao's regime. This is precisely I'm saying. So which means the very premise on which Mr. BP Rao was given an extension, that itself stands exposed. Absolutely. It is 100% true, because you are rewarding a man for obviously ulterior motive. So you are rewarding a man, you actually gave him an extension of 2 years and you are rewarding him for destroying BHEL. That's Absolutely. exactly what you're doing. The All Air right. India way. All right, not destroying, but at least causing a loss. At Yeah. least a loss during his stewardship. Bajaj Sahab, I want to tell the viewers one more thing. Yesterday, the same figure I'm quoting, 40,000 crores of finished goods are lying in BHEL factories. Right? This is something like, you have something like $5 to $6 billion worth of stock, which nobody is lifting. And I will tell you why they are not lifting. Advances are paid, but when advances are paid, you make the machinery 30-40% more is spent. In this case, 100% is spent, only 30% payment is made.
Now these machinery is going to private sector of India. Can you believe all these orders placed by private sector predominantly? And why? Because their coal supplies have been delayed and other things have been delayed. But there is no effort from BP Rao and company to send these goods to the market so that BHEL becomes healthy. This is the Right. point I am trying to make. So there is no way this man... And the other scam that we talked about, we'll also talk about it later on. Not today, of course. The night vision equipment that is made by BHEL, That is which they horrible. 1,000 crores. which they just picked up from Israel, put on the Stamped by BHEL BHEL. stamp, and then decided to, give it to the Give it defense to the department. defense, cheating That's right. defense. Which is the most awful thing in the world. In fact, it would have been cheaper if the army had decided to outsource the entire thing directly from Israel. Absolutely. They could have done that. And I There tell was no you, need to this have needs- BHEL right in the middle. This needs Mr. Rao to be instantly arrested. Right. Now, instead of that, such a fraud He is has been committed, rewarded. and he's been rewarded. So He has been So there rewarded. is no way his performance was the reason that he stays as CMD BHEL. And let me tell you once again, this was exposed by Inertia. Inertia Absolutely. is a magazine which is edited by Professor Iyer, and we are very honored to have you over here on the show. Thank you so much, Professor Iyer. Thank you so much for being with us. Right, we got to take a break. We have to take a very, very short break. When we come back, we will continue with our subject of yesterday, which was the great cooperative scam. सबसे बड़ा स्कैम महाराष्ट्र का, हिंदुस्तान का कोऑपरेटिव स्कैम, यानी सहकार सेक्टर में जो स्कैम है, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो स्कैम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. We take a look at the headlines again. We'll come back after a break. Don't go away. भारतीय रेलवे में 100% होगा विदेशी पूंजी निवेश, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान. सलमान खुर्शीद ने उठाया मोदी की रैली में भीड़ पर सवाल, कहा विदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में जुटी भीड़ कितनी असली. बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि. फर्जी मुठभेड़ों में गुजरात सरकार का हाथ नहीं, एचएस बेदी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का खुलासा. और राजनीति में रजनीकांत की दिलचस्पी, सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि भगवान ने चाहा तो वो राजनीति में आकर लोगों की करेंगे सेवा. Right, welcome back. You're watching me, that is RKB, that is Rajiv K. Bajaj on Inside Story. प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और चैनल का नाम है लेमन न्यूज़. जी हाँ, ये तो सब आप जानते ही हैं. और अभी हम बात करेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में. कल इस विषय में हमने बात करी थी, परसों भी बात करी थी, उसके पहले भी बात करी थी कि जहाँ तक के सहकार मूवमेंट का प्रश्न है महाराष्ट्र में, याद रखें महाराष्ट्र इज़ द पाइनियर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट. और कोऑपरेटिव मूवमेंट में इस वक्त जो स्कैम चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं और इतनी ब्लेटेंटली चोरी हो रही है, बिल्कुल सामने चोरी हो रही है जैसे कि कानून का कोई डर ही ना हो. इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले देख लें अब तक की खास खबरें. लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्कैम ऑफ द सेंचुरी. लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फर्स्ट. भारतीय रेलवे में 100% होगा विदेशी पूंजी निवेश, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान.
सलमान खुर्शीद ने उठाया मोदी की रैली में भीड़ पर सवाल, कहा विदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में जुटी भीड़ कितनी असली। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। फर्जी मुठभेड़ों में गुजरात सरकार का हाथ नहीं, एचएस बेदी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का खुलासा। और राजनीति में रजनीकांत की दिलचस्पी, सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि भगवान ने चाहा तो वो राजनीति में आकर लोगों की करेंगे सेवा। Right, another moment with us. Of course, we have Pradeep Nambiar and we have Dr. Tiwari and we have Mr. Pankaj Shah. हम लोगों ने जिस प्रकार कल बात करी थी, पूरी बात हमारी हो नहीं पाई थी कि डीम्ड कन्वेंस को लेकर के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को लेकर के जिस प्रकार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं और यहाँ तक के जो अधिकारी हैं जिनका ये दायित्व है कि वो सब लोग उन सब लोगों की रक्षा करें, उन सब लोगों के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखें जो कि आम लोग हैं हिंदुस्तान के। अगर वही लोग रिश्वत लेनी शुरू कर दें, अगर वही लोग डीम्ड कन्वेंस के लिए 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए लेने शुरू कर दें, तो आखिरकार कोई शख्स जाएगा तो कहाँ जाएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो हम लोगों ने मूवमेंट शुरू करी है, ये मूवमेंट को हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक के इसमें सुधार नहीं होता। राइट, डॉक्टर तिवारी आप बताएं। शो के पहले आप बता रहे थे कि जहाँ तक हाउसिंग सोसाइटीज़ का प्रश्न है, कई हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं, कई नहीं ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ने एजीएम ली है। एजीएम के तहत वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि रजिस्ट्रार को देने के लिए, यानी ब्राइब देने के लिए 20 से 23 लाख रुपए की रकम कलेक्ट की गई है मेंबर से। डॉक्टर तिवारी, जनरली होता ऐसा है कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे ब्लैक मनी का फ्लो नहीं हो सकता है जी। जब आप रिश्वत मांगेंगे या किसी भी दूसरे तरीके से अगर उनको पैसा देना है तो उनको एक रेजोल्यूशन, चाहे मैनेजिंग कमेटी में या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में जी, उनको सर्वसाधारण मीटिंग जो है उसको बुला के सभा में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर 20 लाख 25 लाख किसी को भी देना है तो उसको पेपर पे उनको लिखना ही पड़ेगा कि 25 लाख रुपया मुझे डीम्ड कन्वेंस के लिए जो भी अथॉरिटी है या फला जो वकील है या कोई भी बीच का मीडिएटर है उसको हमें देना है जी। तो ऑन पेपर हो जाता है। 25 लाख रुपए की जो रिश्वत होती है वो मीडिएटर के अकाउंट में जाता है, मीडिएटर उसको एनकैश करके डायरेक्ट जो कैश अमाउंट होता है उसको कंसर्न अथॉरिटी को देता है। ये हम नहीं कहते, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहता है। कुछ सोसाइटियों के जो एविडेंस है, जो सर्वसाधारण मीटिंग में उन्होंने एक क्लियर कट रेजोल्यूशन पास किया है, जो हमने लेमन न्यूज के माध्यम से आज हम पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं। Which is amazing, which is absolutely amazing, absolutely amazing। प्रदीप आप बताएं, क्या आज तक कभी आपने ऐसा सुना है, मतलब कि आधिकारिक तौर पर एक रेजोल्यूशन पास हो रहा हो कि भाई क्योंकि हम लोगों को रिश्वत देनी है इसलिए हम सभी मेंबर से इतने पैसे हमें कलेक्ट करने पड़ रहे हैं कन्वेंस के लिए। प्रदीप सर एक बहुत बड़ा दुविधा है। दिस इज एक्चुअली व्हाट द सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज करे क्या जी। अभी आपको जो 2000 रुपये का काम है उसके लिए अगर 25 लाख रुपया देना पड़ रहा है जी, डीम कन्वेंस के लिए, और नॉट द पोरेस्ट ऑफ पोर। हाउसिंग सोसाइटीज में आज सब लग्जरी सोसाइटीज नहीं है सर। 23,000 सोसाइटीज में 99% है जो गरीब जनता है, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है। वहां 2000 रुपये में जो डीम कन्वेंस होना चाहिए उसको अगर 25 लाख देना पड़ रहा है, दिस इज अ क्राइम विच द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन हर्षवर्धन पाटिल हु वाज द लास्ट इज टोटली रिस्पांसिबल। द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट, इट कांट। आप इतने, और इसको कैसे करेंगे? हाउसिंग सोसाइटीज कहां से ब्लैक मनी निकालेंगे? अगर पैसा निकलता है एक ब्लैक डीड, काले करतूत को फाइनेंस करने के लिए, उनको अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। जैसे तिवारी जी ने रेजोल्यूशन हमारे सामने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया है कि 25 लाख का घूस देना पड़ रहा है रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को डीम कन्वेंस ओके करने के लिए। इतने सारे, एक आसान तरीका था, सीएम का कहना था बहुत सिंपल तरीका है डीम कन्वेंस करने का, मगर आज के तारीख में हम देख रहे एक केस के बाद एक केस के बाद केस, घूस, ब्राइब,
corruption, exploitation of the most poor मिस्टर of the शाह, poor. पंकज शाह जी आप बताएं इसका सोल्यूशन क्या है, ये बताएं, क्योंकि कल हमने आपका सुझाव लेने की कोशिश की थी कि भाई इसका सोल्यूशन क्या तो है। मैंने ये वो कहा तो कि बताएं। जो फॉर्मेलिटी है जी अगर सबसे पहले ये क्यों होता है डीम कन्वेंस का, मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बिकॉज ऑफ रीडेवलपमेंट, Right. और जहां पे डीम कन्वेंस की जरूरत है नहीं थी, इतने साल सोसाइटी ने भी कुछ नहीं किया। जी तो सवाल ये है कि रीडेवलपमेंट की वजह से ये होता है। अभी रीडेवलपमेंट क्यों जरूरत पड़ता है, उनके प्लान पास नहीं होते। जी अब जहां सोसाइटी में डिस्प्यूट नहीं है जी तो वहां पे समझो 20-25 साल से भी सोसाइटी है, आज वो सोसाइटी को कन्वेंस का प्रोसीजर और बिल्डर को डेवलपर को नोटिस देके ये सब जो प्रोसीजर है, तो सिंपल बात नहीं कि देयर इज नो डिस्प्यूट, नो कंट्रोवर्सी, Right. तो दे शुड गो अहेड। यस अभी वो आगे नहीं जा सकते, इसके लिए वो रीडेवलपर, उनका भी जैसे आपने कल बताया 2-4 जीरो कम होगा ज्यादा होगा, बट स्टेक इज दैट मच। तो ये वजह से रीडेवलपमेंट में डिमांड भी होगी, तो जी। लोग देना भी इसी वजह से पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज, प्रदीप जी आप बताएं और डॉक्टर तिवारी आप भी इसके बारे में बताएं कि रीडेवलपमेंट जाना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि कई ऐसी बिल्डिंग हैं जिनकी हालत इतनी जर्जर है कभी भी गिर सकती हैं, तो उनको रीडेवलपमेंट करनी है, और वो रीडेवलपमेंट तभी कर सकते हैं अगर उनके पास कन्वेंस है। अगर कन्वेंस नहीं है दे कैन नॉट रीडेवलप द बिल्डिंग। प्रदीप Exactly, sir. ये पूरे जो लास्ट सीएम थे, the entire objective of this deemed conveyance was making simpler. जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जब हमने कैंपेन चलाए थे, आपको याद होगा लेमन में 2009-2010 में, जो कालबा देवी और उस इलाके में साउथ मुंबई में जो बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक बिल्डिंग जो गिरने के कगार में है, आज भी कभी भी गिर सकता है। जो लोग हमारे टेलीविजन चैनल में आकर ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम जब सवेरे रात को अंदर जाते हैं हमको मालूम नहीं कि दिन में जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे, तो ऐसे हालात में, और सरकार इज एब्सोल्युटली टोटली इनसेंसिटिव टू दिस कॉज। Yes. ये कॉज इनसेंसिटिव था। आपको Right. इतने सारे पुराने टूटे फूटे डिलापिलेटेड स्ट्रक्चर्स को रिडीम करने के लिए ये डीम कन्वेंस लाया, मगर आपने और जनता को और उलझन में फंसा दिया। उलझन में फंसा के 25-25 लाख अगर उनको डीम कन्वेंस के लिए देना पड़ेगा, तो आप सोच लो, अगर 23,000 सोसाइटीज में आप जो फिगर कह रहे थे वो सही है, 4,000 से 5,000 करोड़ का बड़ा स्कैम है जो So सिर्फ which एक means- कॉर्पोरेशन तो डिपार्टमेंट कहने में का- हाउसिंग सोसाइटी वालों को देना पड़ रहा है। कहने This का is a मतलब ये shame of हुआ the state. कहने का मतलब ये हुआ कि डीम कन्वेंस का कानून शायद इसीलिए लाया गया, लोगों का ये कहना है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं है, कि 5,000 करोड़ की जरूरत थी तो इसलिए डीम कन्वेंस का कानून ला दिया ताकि जल्द से जल्द ये 5,000 करोड़ कलेक्ट हो जाए। डॉक्टर तिवारी देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि कोई भी पॉलिसी जो सरकार लेके आती है आम जनता की सुख हितों को ध्यान में रख के पॉलिसी आती है। अभी डीम कन्वेंस की अगर हम बात करें, जो कंसर्न अथॉरिटी है, सारे के सारे डीडीआर या जॉइंट रजिस्ट्रार भ्रष्ट नहीं है जी। ये चीज मैं नहीं मानता हूँ। जो डेटा अवेलेबल है वो कुछ डीडीआर या कुछ जॉइंट रजिस्ट्रार्स के हैं, और कुछ मतलब सबसे बड़ा डेटा जो अवेलेबल है विकास रसाल का अवेलेबल है। अब सवाल क्या है, ये पूरा का पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम जो है, जो आज की डेट में जो डिपार्टमेंट पे, इसमें जो सीनियर लेवल पे जो बैठे हुए हैं, वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे वो शैलेश कोतमिरे साहब हो, चाहे वो दिनेश होलकर साहब हो, चाहे वो राजगोपाल देवरा जो ब्यूरोक्रेट सहकार सचिव है खुद ही हो। अब सवाल ये पैसा जाता कहाँ है, ये जी। अहम मुद्दा है। मुद्दा जी। ये नहीं है कि 20 लाख 25 लाख लिया जा रहा जी। है। मुद्दा ये है कि जैसे विकास रसाल साहब, ये 4 साल के टेन्योर में, 4 साल तो ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक अपने आप को 3 सोसाइटियों में नियुक्त करके रखे हुए थे, जबकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार अपने आप को प्रशासक नियुक्त करे। 4 साल तक कंटिन्यू ये चारों जगहों से सैलरी लेते गए। अब सवाल ये, अगर ये तीन जगहों पे प्रशासक करके काम कर रहे थे तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार सिडको करके काम कब किए? सवाल यह है 220 सोसाइटियों को इन्होंने डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर कैसे पास किया जी। और जितने भी 220 सोसाइटियां या 250 सोसाइटियों को डीम्ड कन्वेंस इन्होंने ऑर्डर पास किए, हर सोसाइटी से 10 लाख 15 लाख 20 लाख की रिश्वत इन्होंने ली हुई है, जो कि डॉक्यूमेंट पे है, पेपर पे है। दूसरा 1,000 से लेके 1,200 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन किया है जी। वो हर एक सोसाइटी से इन्होंने 10 लाख 5 लाख रुपए की रिश्वत ली है और सारे के सारे काम इन्होंने अपने रिलेटिव। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर तिवारी मैं आपसे फिर यही सवाल पूछता हूँ, शो के पहले भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो भी एक्ट पास होता है वो जनहित के लिए ही होता है, लेकिन उस एक्ट में किस तरीके से लूप होल निकाले जाते हैं ताकि भ्रष्ट लोग उसका फायदा उठा सकें, वो भी हमारे सामने है। यहां पर आपसे ये जानना चाहता हूं, ये सब तथ्य जो आपने हमारे सामने रखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये तथ्य सिर्फ आप ही के पास है, ये तथ्य सारी सरकार के पास है, प्रशासन के पास है, और ऐसा भी नहीं है
कि प्रशासन में सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं मानता। 80% जितने भी हमारे अफसर हैं वो बड़े आराम से, बड़े ऑनेस्टली, बड़े ट्रांसपेरेंसी से, इंटेग्रिटी से काम करते हैं। तो आखिरकार ये कुछ लोग जो 10 या 20% लोग जो भ्रष्ट हैं, उनको अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? चलिए, जेल में ना भी डालिए, जैसा कि आप ही ने कहा था, इनका तबादला अब तक क्यों नहीं हुआ? जेल जाने की तो बात खैर बहुत दूर है, चलिए जेल नहीं भी गए तो इनका तबादला क्यों नहीं हुआ, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। सर थोड़ा मैं आपके डेटा से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं रहूंगा कि 80% लोग सिंसियर हैं, ईमानदार हैं। ये मेरी उम्मीद है। हो सकता है, देखिए आपकी उम्मीद है, लेकिन जो हमारा अपना रिसर्च होता है, जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे पास डेटा आते हैं, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में हार्डली 10 से 12% ईमानदार हैं। वो 12 So which means it's exactly the opposite. He's saying exactly the opposite of what I am saying. Now, I don't believe this. All right, I don't believe this. I personally feel that as far as the bureaucracy is concerned, it's still my fond hope. मैं मतलब देखिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका सबका दिल टूट जाएगा अगर हम ये बात कहेंगे कि 10 से 12% ही लोग ऑनेस्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग ऑनेस्ट हैं। मैं एक सवाल पेश करता हूं सर। जी बताएं। अगर मेजॉरिटी सिंसियर ऑनेस्ट लोगों का है तो करप्ट लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए सिस्टम में। चूंकि ऑनेस्ट और सिंसियर ऑफिसर की तादाद बहुत कम है, इसीलिए आज यहाँ पूरे सिस्टम में भ्रष्ट लोगों ने अपना एक मेजॉरिटी खड़ा करके रखा हुआ है। अब एग्जांपल मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की देता हूं, क्योंकि डीम्ड कन्वेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे आज आप अगर किसी एक छोटे, जनरली जो करप्शन होता है ये नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे होता है। जब यहाँ का सहकार सचिव खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, उनका 18 साल का लड़का पूना में 2500 स्क्वायर मीटर का हाईवे टच प्लॉट 2013 में बोलते हमने 48 लाख में लिया है, जिसकी उस समय बाजार का जो कीमत था वो 2.5 करोड़ रुपया था। अब वो 18 साल के बच्चे के पास है। And there it is on your screen right now. And there it is on your screen right now. उनके पास कहां से Can we have that document on screen? ये स्क्रीन पर जो आप डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, ये साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि किस प्रकार इतना पैसा कलेक्ट किया गया हाउसिंग सोसाइटी द्वारा। एंड इट्स ऑल देयर इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक बेचारी, एक अकेली हाउसिंग सोसाइटी 20 से 25 लाख रुपए कलेक्ट करके कन्वेंस में जा रही है। नाउ दिस इज, आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू एंड। प्रदीप आप बताएं। सर, अगर सरकार, एवरी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू हेल्प द मोस्ट पुअरेस्ट टू पुअर, जैसे हमने कहा कि कालबा देवी से लेके, कुरला से लेके, अब बोरीवली से लेके जितने डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर्स, पुअर, गिरने वाले स्ट्रक्चर्स है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट वाज एब्सोल्युटली राइट, बट द एक्शन टू डू इट, द मेथोडोलॉजी वाज टोटली करप्ट। आप एक सिंगल विंडो बोलोगे, वो सिंगल विंडो के 1000 विंडो है। आप कलेक्टर ऑफिस के विंडो खोल दिए, आप एजुकेशन ऑफिसर जो है उनके ऑफिसर, डीडीआर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं प्रदीप। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं आपसे मैं आई एम सो सॉरी आई डिसएग्री विद यू। आई डिसएग्री विद यू। नो, हैंग ऑन अ मिनट, आई लेट यू स्पीक। एक जगह है जहां पर सिंगल विंडो है, जिन्होंने अभी डॉक्टर तिवारी ने कल ये बात करी थी, जिनको मामा कहा जाता है, वो एक सिंगल विंडो है जहां पर आप जाकर के रिश्वत दे दीजिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। किसी विंडो में जाने की जरूरत नहीं है, कोई डोर खोलने की जरूरत नहीं, मतलब वहां पर आप जाएंगे, सारे दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाएंगे। जी प्रदीप बताएं। एंड करप्शन वाली बात है, हमने एंडलेस सेमिनार्स बहुत पूरे विस्तार में मुंबई के हर एरिया में लिए। I'll tell you very frankly, only 1% out of the entire crowd of so many seminars आके हमसे बोला कि एक ऑफिसर बहुत ईमानदार था, उन्होंने बिना पैसे हमारा पूरा फाइल क्लियर किया और जाने से पहले, ट्रांसफर होने से पहले बुला के मुझे अपना फाइल क्लियर करा के दिया। That was only one instance of the numerous instances। हर सेमिनार में लोग यही कहते थे, हमको पैसा देना पड़ रहा है, पूरा भ्रष्ट है, ऊपर से नीचे तक करप्ट है, इतना भ्रष्ट। द एंटायर सिस्टम वाज सो भ्रष्ट दैट मिनिस्टर जो थे वो पब्लिक सेंटिमेंट्स में आके कहना पड़ा कि हाँ ठीक है, मैं आपका बात मानता हूं, मैं इस चीज को अभी इनकॉर्पोरेट करूंगा। बट विद इन 1 वीक वी केम टू द सेक्रेटरी, एब्सोल्युटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज, वी आर वर्किंग इन एंटायर ऑर्गेनाइज्ड रैकेट ऑफ क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तरीके से चल रहा है। एब्सोल्युटली, जिसमें गरीब से गरीब आदमी, the poorest of poor, for which the constitution, the law, the amendments, for whom the law has been made, everything is made, उसको कोई, he has always crying, हमेशा रोना, हमेशा exploitation, sufferings, ये जिंदगी में लिखा है। These things have to change, and things have to change। सर आपके सब परसेंटेज बराबर है। नहीं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देवेंद्र फडणवीस जी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को यहीं पर एक काफ़ी बड़े बिल्डर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जब वो अपनी फाइल फॉलो कर रहे थे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ,
जब यूपीए सरकार होती थी तो वहां पे जयंती टैक्स देना पड़ता था। इस वक्त आज के पर्यावरण मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि यहां पर आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है, आप कृपा करके सिर्फ वेबसाइट पर जाएं, आपको दिख जाएगा कि आपको परमिशन मिली है कि नहीं, और अगर नहीं मिली है इस वजह से नहीं मिली है, और अगर मिली है तो आपको मिल गई है और आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए। ये व्यवस्था कब होगी यहां महाराष्ट्र में, ये बताएं पंकज शाह जी। सर, सबसे पहले आपके सब परसेंटेज बराबर है, जो डेफिनेशन है विंडो डोर जैसा फर्क है। आपने 80% बोला, यू आर राइट, तो बाकी का 20% कौन है जो लोगों को कंप्लेंट नहीं है कि रीजनेबल नहीं है, रखड़ाते वो है। तिवारी साहब ने भी बिल्कुल बोला, लेकिन तिवारी साहब ने परसेंटेज वो बोला वो रियल मायने में ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट और ये जो आपका परसेंटेज का डिफरेंस है, वो डिफरेंस वो है कि पीपल विलिंगली अनविलिंगली दे आर रेडी टू पे एंड दे फील दिस इज द पार्ट ऑफ। जी। अब सवाल ये कि ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था पैसे के लिए, क्योंकि बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हो सकता था जी, बराबर। ये लोगों को बताने के लिए कि लोगों के साथ ये हो रहा है कि हर बिल्डिंग जूना हो रहा है, तो दिस वाज द थिंग कि लोगों को ये लगे, और अगर लोग नहीं करते तो लोग अपने आप को ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट ने तो कर दिया, प्रैक्टिकली नहीं किया। तो सवाल है कि आपके सब परसेंटेज बराबर है। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है, और डॉक्टर तिवारी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह बनती है कि जहाँ तक के आम लोगों का प्रश्न है, आम जनता का प्रश्न है, आज की तारीख में 23,000 सोसाइटीज़ हैं। अगर आज ये 23,000 सोसाइटीज़ मिल करके, जैसे आपका सहायक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अम्ब्रेला तले या एक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये कहें कि हम 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं देंगे, वी विल वेट, वी विल नॉट पे अ सिंगल पेनी, एंड एनीबडी हु आस्क्स वी विल नेम दैट पर्सन एंड शेम दैट पर्सन। तिवारी जी बताएं। देखिए, ये मुहिम हमने शुरुआत इसकी कर दी है, और इसमें हर एक इंसान, हम देखिए जैसे मोदी जी ने एक अच्छा नारा दिया कि अगर देश का 150 करोड़ जो आबादी है, हर इंसान ये चाह ले कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो कोई भी देश को गंदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, करेक्ट। ठीक उसी तरह से अगर महाराष्ट्र की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है, हर सोसाइटी का हर एक बंदा ये ठान ले कि हमें किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं देना है, और हमें ईमानदारी से केस लड़के दुरुस्त बात है, ईमानदारी से ऑर्डर लेना है जी। तो किसी भी जॉइंट रजिस्ट्रार या किसी भी डीडीआर की ये हिम्मत नहीं है कि वो रिश्वत ले सके। रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी गुनहगार है। एब्सोल्युटली। यहाँ प्रदीप, गो अहेड। ये सर बोलना बहुत आसान है। एक्चुअली वी नीड अ टोटल एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की जरूरत है। आइसोलेशन में कहना कि ये अगर आम आदमी जो रीडेवलपमेंट जाना चाहता है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ प्रदीप, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये मान करके चलता हूँ कि कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी हो जाती है कि बंदे को भाई जो प्रथा है उसके साथ आप चलिए, लेकिन मेरा ये कहना है अगर क्रांति लानी है तो सब लोगों को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गुलामी की बेड़ियों से आप निकलें तो आप ये नहीं सोच सकते कि भगत सिंह आपके घर में नहीं, नेबर के घर में पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, और उसके मार्टरडम पे और उसकी शहादत पर आप जाकर के राष्ट्रगीत गाएं, जबकि वो अपने बच्चे के खोने के आंसू बहाएं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मैं आप सबके सामने ये बात रखता हूं, और ये लेमन न्यूज़ के तहत, इनसाइड स्टोरी के तहत और इस शो के तहत मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी है, आपको अगर ऐसी कोई परेशानी है, तो आप ज़रूर अपने ईमेल भेजें ऑन insidestory@lemonnews.com। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आपको अगर कोई डिफिकल्टी आती है, वील हेल्प यू राइट ओवर हियर। Do send in your emails on insidestory@lemonnews.com। जी प्रदीप बताइए। एग्जैक्टली सर, बिकॉज आप अगर 30 रुपए से 50 रुपया आपको घूस पर सुपर बिल्डअप पर स्क्वायर फीट देना पड़े, वो सुपर बिल्डअप, आई मीन व्हाट काइंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्राइब देना, 50 रुपया पर स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप पे आपको डीडीआर को देना पड़ेगा। डीम कन्वेंस के लिए लेने द एंटायर वारंट, जिस पर्पस के लिए ये एक्ट निकाला, जिस पर्पस ने डीम कन्वेंस निकाला, right. जो गरीब जनता को मदद करने वाले, एंटायर पर्पस इज डिस्ट्रॉयड। पर्पस से डिस्ट्रॉयड हो गया। सैंक्टिटी लाना पड़ेगा। जैसे आप कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड मुहिम चलना पड़ेगा पूरे महाराष्ट्र में कि कोई भी डीडीआर के ऑफिस से डीम कन्वेंस के लिए पर स्क्वायर फीट के ऊपर ब्राइब मांगता है 2000 रुपये से ज्यादा, अगर 25-25 लाख लोगों को देना पड़े, तो आपको ये हेल्पलाइन, जो आपने कहा दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग, एक हेल्पलाइन, एक सेंट्रल एजेंसी पूरे महाराष्ट्र में जो डायरेक्टली सीएम को रिपोर्ट करेगा कि ये क्या हो रहा है आपके देश में, कि एक आम जनता जो जिसके बिल्डिंग छत गिरने वाले, जो
हाउसिंग आपने कहा कि नियर टू फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है सरकार का। अगर उस डीम कन्वेंस अपने बिल्डिंग को बचाने के लिए कन्वेंस करना पड़ रहा है, उसके लिए उसको 25 लाख घूस देना पड़ रहा है, पर That is स्क्वायर फीट shameful. के हिसाब That से is राइट shameful. देना पड़ रहा है। That तो is shameful. there's something No. wrong in the system. People have to be punished. They have to be hanged. This will not allow to happen. काम से जो गरीब से गरीब जनता है, उनको न्याय मिलना चाहिए। And do Dean send in. Conveyance, Do send in your 23,000 mails. बिल्डिंग मुंबई का। You start with a mail. It's on insidestory@lemonnews.com. That's Yes. where you start. आप पहला कदम उठाइए। मैं एक बार फिर मानता हूं, ये जैसे प्रदीप जी ने कहा, डॉक्टर तिवारी ने भी कहा, पंकज शाह जी ने भी कहा कि कहना आसान है कि किसी को घूस नहीं देना चाहिए, ना लेना चाहिए। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर आपातकालीन स्थिति होती है, आपके पास और कोई चारा नहीं है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपके पास चारा है। अब आपके पास विकल्प है, आप यहां पर मेल करिए। दैट्स इट, राइट ओवर देयर, insidestory@lemonnews.com. Mr. Shah, thank you so much for coming. Dr. Tiwari, thank you so much for coming with us. Pradeep, I think we've really run out of time. We will of course be back over here tomorrow at the same time and we will be talking about various other scams. जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम एक बार फिर आपसे वादा करते हैं, as far as we are concerned, we are right there with you. आपको अगर कोई घूस मांगे, आपसे अगर कोई रिश्वत मांगे, आपसे अगर कोई कहे कि आपको ये गैर कानूनी काम करना पड़ेगा वरना कानूनन जो आपका हक है उससे आपको वंचित रखा जाएगा, that's your email right over there, insidestory@lemonnews.com. Do send in your emails. We want to hear from you and we are there to help you. अगर आपको कोई तकलीफ होती है, हम आपके साथ हैं हमेशा। हमेशा याद रखें, जहां तक इस शो का प्रश्न है, इस चैनल का प्रश्न है, हम आपकी सिर्फ आवाज ही नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। We are not just your voice. We are there with you all throughout, right till the end. That's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. We'll of course be back over here on the same channel at the same time with another Inside Story, but that's tomorrow. We leave you with the headlines. Keep watching Lemon News. Bye-bye. भारतीय रेलवे में 100% होगा विदेशी पूंजी निवेश, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। सलमान खुर्शीद ने उठाया मोदी की रैली में भीड़ पर सवाल, कहा विदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में जुटी भीड़ कितनी असली। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए बाला साहेब ठाकरे को दी श्रद्धांजलि। फर्जी मुठभेड़ों में गुजरात सरकार का हाथ नहीं, एचएस बेदी कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का खुलासा। और राजनीति में रजनीकांत की दिलचस्पी, सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि भगवान ने चाहा तो वो राजनीति में आकर लोगों की करेंगे सेवा।